Hello, dear students. Welcome you all in your English class. Today, I am going to read and explain poem 6, and that is No Men Are Foreign. It is composed by James Kirker. The title No Men Are Foreign means that the no men belong to another country. The poet wants to say that all men are same. All men are equal. He wants to promote the concept of universal brotherhood. In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. All people, all men are same. They eat, live, die the same way. Everyone gets the boundaries of nature like sunshine, land, etc. in equal measure. We can also say that it is a peace poem. Dear students, the concept of this poem is universal brotherhood. ये poem यूनिवर्सल ब्रदरहुड के कंसेप्ट पर बेस्ड है. यूनिवर्सल ब्रदरहुड मीन्स दैट all men are same, all men are equal. Why they are equal? Because all the habits of all the men are same. They eat, live, die the same way. सभी लोग चाहे वो इंडिया में हैं, वो किसी फॉरेन कंट्री में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, किसी सिटी में है, किसी कंट्री में है, जहाँ पर भी हैं, सभी के हैबिट्स, रहने का ढंग, यहाँ अर्थ पे रहने का ढंग हम सबका सेम है. तो हम इसलिए इसका टाइटल ही क्या कह रहा है? दैट नो मैन आर फॉरेन. कोई भी मैन बाहर का नहीं है. फॉरेन का मतलब क्या होता है? बाउंड्री से बाहर. कोई भी मैन, कोई भी पर्सन बाहर का नहीं है. क्यों? बिकॉज हम सभी एक ही जगह से, एक ही तरह के ढंग को बिलोंग करते हैं. एंड सो द मेन कंसेप्ट of this poem is based on the universal brotherhood. Now, let's come to the first stanza. I am going to explain the very first stanza of this poem. Now, the stanza 1 is remember. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. In the first line, the poet says that no men are strange and no country is foreign. कोई भी person strange नहीं है, कोई भी country foreign नहीं है, बाहर की नहीं है. So he is attempting to remove the borders from the earth which have been erected to separate different countries. अब जितनी भी बाउंड्रीज बनी हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, इनकी बाउंड्रीज है, वो किस लिए बनाई जाती हैं? ताकि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से सेपरेट किया जा सके. सो पोइट फेवर में है कि ये बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, इनको रिमूव कर देना चाहिए. देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन. तभी हो सकता है कि ये पूरी की पूरी जो ये वर्ड है, ये यूनिवर्स है, ये एक कब बनेगा? जब सभी बाउंड्रीज़ को, जितनी भी बाउंड्रीज़ है, जिन्होंने इस अर्थ को अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, अगर इन बाउंड्रीज़ को ही हटा दिया जाएगा तो तभी ये कहा जा सकता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी एरिया फॉरेन नहीं है, सभी इक्वल हैं. We will feel every country as our own land when there will be no borders. Borders नहीं होंगे तो obviously हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को अपनी कंट्री कह पाएंगे. Everyone will be free to move around. Obviously, we will be free to move all around. The poet wants to say that the entire earth is one, and all the people who live on this earth belong to one human race. Yes, we all are equal. If we are Americans, we are Indians,
वी आर इंग्लिश पीपल। जैसे हम कैसे भी हैं, इंग्लिश हैं, अमेरिकन्स हैं, इंडियंस हैं, बट ऑल इन ऑल हम सब एक जैसे हैं। जितने भी हम इस अर्थ पे रह रहे हैं, मेनली क्या है, हम एक ही ह्यूमन रेस को बिलोंग करते हैं। हम सबको क्या कहा जाता है, ह्यूमन बींग्स। एक इंडियन खड़ा है, एक इंग्लिश खड़ा है, अमेरिकन खड़ा है, साउथ अफ्रीकन खड़ा है, तो हम उनको क्या कहेंगे, ह्यूमन बींग। वो सभी के सभी ह्यूमन बींग्स हैं क्योंकि वो सेम ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं। देन ही सेज दैट इनसाइड द यूनिफॉर्म्स worn by soldiers of different countries the human being is the same। अलग अलग कंट्रीज के जो सोल्जर्स हैं वो होते तो अलग अलग यूनिफॉर्म्स में हैं, बट अगर डीपली देखा जाए तो उन यूनिफॉर्म्स के नीचे उन जो बॉडी कौन सी है, ह्यूमन बीइंग की है। ह्यूमन बीइंग तो सभी सेम होते हैं। गॉड हैज़ मेड all of us in a similar way, all breathe in the same way। Then he says that all the soldiers are our brothers। डेफिनेटली हम सभी सेम हैं, हमें एक जैसे बनाया गया है। किसने बनाया हमें, द गॉड ने हमें बनाया है, सिमिलर वे में बनाया है। हमें हमारे रहने का तरीका एक जैसा है, मैनर एक जैसा है, हम सभी ब्रीथ करते हैं तभी जीते हैं, तो इसका मतलब हम सभी सिमिलर हैं। देन इसलिए द पोएट हियर सेज दैट ऑल द सोल्जर्स आर आवर ब्रदर्स। वी ऑल वॉक अपॉन द सेम मदर अर्थ एंड अपॉन आवर डेथ शैल लाई इन द ग्रेव इन द सेम अर्थ। सभी के सभी ने अगर मरना है तो हमारी ग्रेव यार्ड कहाँ होती है, इस अर्थ पे, सभी के लिए, चाहे वो फॉरनर है कोई भी है, सभी का ग्रेव कहाँ बनेगी, हमारी इसी अर्थ पे जगह सेम है। Now come to the second stanza। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved। Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own। In this stanza the poet have used, in the very first line, the poet has used they। They refers to those people who belong to other countries। We call them foreigners and discriminate them and fight with them also। they वो लोग हैं जो इंडिया के बाहर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉरेनर्स। इसलिए हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उनसे फाइट करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनको अपने आप से अलग मानते हैं। द पोएट सेज दैट नेचर हैज़ गिवन ऑल द बाउंटीज टू ऑल पीपल ऑल्सो जस्ट लाइक ही हैज़ गिवन टू अस। जिस तरह से नेचर ने जितनी भी फैसिलिटीज़ दी हैं वो सभी को इक्वली दी हैं। नेचर ने कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, ये फॉरेनर्स हैं, ये लोकल हैं, ऐसे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। जो भी नेचर की तरफ से मिला है सभी को इक्वल मिला है। एवरीवन गेट्स सनलाइट, यस, एयर, वाटर इन इक्वल मेजर, विच मीन्स दैट गॉड डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। We all do farming during the time of peace। When there is no war, we live a relaxed life and eat the things given to us by nature। नेचर से जो भी हमें मिलता है हम सभी इक्वली उसको गेन करते हैं, उसको रिलैक्स ढंग से खाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। फर्दर ही एड्स दैट द वे वी स्टार्व ड्यूरिंग वॉर्स एंड विंटर टाइम इज़ द सेम फॉर दोज बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज़। जैसे अदर कंट्रीज़ में होता है कि अगर वॉर है, कोई भी युद्ध है हमारी कंट्री में, तो उस टाइम हमें भूखा भी रहना पड़ सकता है। विंटर टाइम में कोई भी सीज़न चेंज होता है, जैसे फ्लड आता है, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, हम सभी के सभी कंट्री, चाहे वो किसी भी कंट्री के हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग रहना, हमें भूखा भी रहना पड़ता है, हमें नेचर की बाउंड्रीज़ को एंजॉय भी करना पड़ता है। ये सभी के सभी इक्वल है सभी के लिए, इवन दे डोंट गेट फूड एट दैट टाइम। सो ही वॉन्ट्स टू से दैट foreigners who belong to another country and we both are same। And then the poet says that
even their hands are same as ours. They work very hard just like we do. Their hands are ours. Here the meaning of their hands are ours means even their hands are same as ours. जैसे हमारे hands हैं उनके भी वैसे हैं. जैसे हम काम करते हैं वो भी करते हैं. जैसे हम लेबर करते हैं वो भी करते हैं. He is giving all these examples to convey to the reader that there is no difference in us and the people belonging to another country. कोई भी difference नहीं है किसी भी country के लोगों में. Dear students, we will do stanza 1 and stanza 2 today. आज हम सिर्फ stanza 1 और stanza 2 ही करेंगे. जो rest part of the poem we will do in the next part of the video. Now some questions are there that are based on stanza 1 and stanza 2. First is beneath all uniforms. What uniform do you think the poet is speaking about? अब आपने इसमें पढ़ा था beneath all uniforms. इस फ्रेज में यूनिफॉर्म्स यूज हुआ है. तो व्हाट यूनिफॉर्म डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट? द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट द डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कंट्रीज. अब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म की बात हुई है तो सिर्फ सोल्जर्स को ही सोचेंगे हम कि वो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं. इसका मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, रिलीजन के हैं, लैंग्वेज हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के हैं. तो सभी के सभी व्हेन ही स्पीक्स मीन्स जब वो यूनिफॉर्म की बात करते हैं पोएट, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, रिलीजन का है, कंट्री का है, सभी के सभी सेम है. नेक्स्ट इज फाइंड इन स्टैंजा 1 ऑफ 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक. फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि 5 ऐसे तरीके हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम सभी इक्वल हैं. ऑल ब्रीथ इन द सेम एयर, ऑल लैंड इज द सेम ऑन विच ऑल लिव. आफ्टर दैट all have to lie on the same earth. All men are aware of sun, air and water. All have to face problems of life. ये सभी के सभी किसी भी कंट्री के लोग हैं, सभी के सभी सेम एक्सपीरियंस करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2? पिक आउट द वर्ड्स. कॉमन फीचर्स कौन से हैं? ऑल आर अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर. ऑल आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट एंड बाय वो देयर हैंड्स आर आर्स. ये सभी के सभी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो शो करते हैं कि हम सभी इक्वल हैं. कोई भी मैन फॉरनर नहीं है. वी ऑल आर इक्वल. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड स्टैंजा 1 and stanza 2. That's it for today. Thank you very much.